Where do you belong to? Basically I am from Jharkhand. Jharkhand? Yes, sir. Which place from Jharkhand? So, district Gumla. Well, what is your father? Sir, my father is a mason. Are you enjoying Yes, classes sir, here? I'm enjoying the Good. class. Did you go through the orientation 1-2 session of the videos uploaded? Yes, sir, I went through the orientation one. So what did you learn there? Sir, I have learned many things, but I connected with 3 types of sadhanas. Oh, yes, sir. Are you doing Shri Sadhana daily? Yes, sir. Yeah, that's great. And what about Shabd Sadhana? Shabd sadhana to speak, Okay. to communicate. Communicate. Yes. And under this Shabd Sadhana, if you remember, some modes of communications were taught. Yes, sir. Do you remember? Yes, sir. That's great. Could you There please tell are them? 4 modes of communication. Those are, first one is listening, speaking, reading, and last is writing. That's great. Very nice. Jamna ji, you said that you come from Jharkhand. Which place did you say you come from Jharkhand? Sir, from district Gumla. District Gumla. Okay. You must be associated with culture, language of your native place. Then you must be knowing at least your Jharkhandi. Yes, sir. language. What is that, your mother tongue? Sir, there is a dialect that is called Kuduk. Kuduk, language, okay. or sorry, that is language, and dialect is Nagpuri. Nagpuri. See, Yes, sir. the best way to improve your communication skill is talk. Bring to talk things that are very close to your heart. I mean that you have talked. जो आपने बात की होती है. तो देखो आप कितने confidence से बोले. Could you please tell them something in your Nagpuri or Kudak? सर क्या बोलूँ You इसमें? can give an introduction. Now I am going to give my introduction in Nagpuri. Like, मोर नाम जमुना आहे, मोए कुनिहार गांव में रहोना, मोए अपन पढ़ाई यही जग से कई रहो. मोर कॉलेज का नाम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सोलन आहे. That's also. I think it's very sweet. तो आज हम clause phrases sentences की बात करेंगे. Simple sentence, compound sentence और complex sentence क्या होते हैं. इससे पहले कि आप phrase और clause समझें, आपको subject, object, verb क्या होता है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. कोई भी एक sentence आप बता सकते हैं. Ritika is planting a tree in her garden. So this is Ritika is Planting a tree. planting A tree a tree in her garden. in her garden. So this is simple sentence. What is Ritika here? Subject. This is subject. And what is here is planting, verb and helping verb, ing. And a tree is here, object. And this is complementary, in her garden. So what is subject? The definition of subject. Subject is a part of sentence. Isn't it part of sentence? Of course. That names a person we are speaking about. Speaking about. अब इससे समझ लो, रितिका सेंटेंस का ही पार्ट है. इसको सब्जेक्ट कहते हैं. कर्ता इसको हिंदी में कहते हैं. अब वर्ब क्या है? वर्ब इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. वर्ब इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट tells the action, or you can say also state of subject.
what subject is doing, right? And then object. What is object? It is a part of sentence that is affected by the action of verb. Action of verb. ट्री जो है इस एक्शन से प्रभावित हो रहा है, राइट? तो ये सिंपल डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको पता चला. अब करेंगे हम फ्रेज और क्लॉजेज और सेंटेंसेस. एक सेंटेंस लिखते हैं. कोई भी सेंटेंस बोल दीजिए. चेतन इज in the kitchen. Chetan is churning milk in the kitchen. What is subject here? Yes, Chetan. कर्ता जिसको बोलते हैं, subject it is. So do you remember the basic structure of sentence in English? Subject plus verb plus object. Subject or predicate करते हैं. प्रेडिकेट. सब्जेक्ट पता चल गया. सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट नेम्स पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड देन प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट. चेतन के बारे में बता रहा ना, इज चर्निंग. तो क्या हो गया? इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस that tells something about subject. और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? चेतन है. तो यह इस चर्निंग मिल्क चेतन के बारे में तो बात कर, इसको बोलते प्रेडिकेट बोलते. इज दैट क्लियर? नाउ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को मिला के क्या बनता है? क्लॉज बनता है. क्लॉज क्या होता है? वाक्य के भीतर जो वाक्य होता है वो क्लॉज होता है. बड़ा वाक्य ये हो गया सेंटेंस और छोटा वाक्य क्लॉज हो गया. क्लॉज को क्या बोलेंगे? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड और इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. सेम यूनिफॉर्म डेफिनेशन रखो ताकि आपको लर्निंग करने में आसानी रहे. इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. That makes a complete sense. पूरी सेंस बन रही है कि नहीं बन रही? चेतन इज चर्निंग मिल्क, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. एक डेफिनेशन क्लॉज की ये होगी. दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसके सब्जेक्ट भी हैं और प्रेडिकेट भी हैं. ये डेफिनेशन होगी. अब इन द किचन क्या है? फ्रेज. फ्रेज का मतलब क्या होता है हिंदी में? वाक्य खंड. सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस. डज नॉट मेक complete sense, but it makes sense. सेंस तो है ना. इन द किचन सेंस बन रही है, ऑफ कोर्स सेंस बन रही इन द किचन, राइट? क्लॉज एंड फ्रेज हो गए. और ये क्लॉज और फ्रेज को मिला के क्या बनता है? सेंटेंस बनते हैं. सेंटेंस जो हमने शुरू से किया था. ये ऊपर क्या था? ये हमारे पास क्या था? सेंटेंस था. अब क्लॉज के बेसिस पे सेंटेंस के 3 टाइप्स होती है. कौन सी? सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. तो इसको करते हैं. नेक्स्ट करते हैं सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज. जैसे आपने काइंड्स ऑफ सेंटेंस की थी शुरू में,
स्टेटमेंट सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और यस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, 4 काइंड्स की थी। और अब क्लॉजेस के बेसिस पे सेंटेंस के 3 मेन टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप्स ऑफ sentences on the basis of clause? First is simple sentence, second is compound sentence, third is complex sentence। अब आपने कैसे समझना है? As I always tell students that अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है तो अपनी डेली लाइफ से, डे टू डे लाइफ से रिलेट किया करो। कोई भी सेंटेंस अपनी डे टू डे लाइफ से बोलो, कोई भी सेंटेंस बोल दीजिए। Neelam ma'am teaches English. ओके, यू कैन से नीलम मैम टीचेस इंग्लिश। नीलम मैम teaches English। बताओ ये क्या सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसके पास एक क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज को और क्या बोलते हैं? मेन क्लॉज भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। किसी पे निर्भर नहीं है। क्लॉज मतलब वाक्य हो गया। इट हैज़ वन प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? विच कैन स्टैंड अलोन, विच कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। पूरा वाक्य जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। अब कंपाउंड सेंटेंस में एग्जाम्पल दो। सपोज नीलम मैम टीचेस इंग्लिश, इसको रखना है, इसमें कुछ और जोड़ दो। सेंटेंस में और जुड़ने का मतलब है नीलम मैम के साथ और जुड़ गया, नीलम मैम की शादी हो गई। सो व्हाट? नीलम मैम teaches English and her husband plows the field, अब आप बताओ कंपाउंड सेंटेंस में क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस हैज 2 प्रिंसिपल क्लॉजेस, अर्थात कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? 2 पूरे वाक्य होते हैं। अब आप देखो, नीलम मैम टीचेस इंग्लिश, पूरा वाक्य हो गया। अगर आप इसको हटा देते हैं, एंड हर हस्बैंड प्लोज द फील्ड, हर हस्बैंड प्लोज द फील्ड, ये भी पूरा वाक्य बन गया। अगर ये हम हटा दें तो भी पूरा वाक्य बन गया। सो इट मीन्स दैट कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हुई? इट हैज़ टू प्रिंसिपल क्लॉजेस। अब क्या होता है कि धीरे धीरे नीलम मैम और उनके हस्बैंड के एक बच्चा हो गया। लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हुई। जब शादी होती है तो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डबल्ड एंड फ्रीडम इज हाफ्ड एंड जॉय कैन इंक्रीज मैनी फोल्ड इफ लाइफ इज लेड अकॉर्डिंग टू धर्मा, नियम, ज्ञान। अर्थात जब शादी होती है तो 2 शब्द आपने यहाँ सीखने हैं। टू हाव, HALVE, टू हाव मीन्स हाफ का हाफ बना। हाफ नाउन है, हाफ वर्ब है। हाफ मतलब आधा होना। टू डबल मीन्स 2 गुना होना। मैनी फोल्ड मीन्स बहुत गुना ज़्यादा होना। अब शादी के बाद क्या होता है? इनके एक बेबी हो गया तो क्या होता है? लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब क्या होगा? इनको सपोज ये घर में अकेले हैं तो इनमें से एक को क्या जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी? बच्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो क्या बोलेंगे हम? इफ नीलम मैम
बेबी सिट्स, बेबी सिट्स, देखो बेबी सिट्स क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब हो गया। बेबी सिट्स, अगर नीलम मैम बच्चे की देख रेख करती हैं तो क्या होगा, हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड क्या करेंगे, विल प्लो द फील्ड, विल प्लो, हल चलाना, द फील्ड, तो खेत में हल चलाएंगे। अब कितने वाक्य हैं यहाँ पे, हाउ मेनी क्लॉजेज आर हियर, 2 clauses, नो 2 clauses, 1 कैसे हो गया, One placement clause. यस, मेन क्लॉज क्या है यहाँ पे, कौन से वाला मेन क्लॉज, मेन क्लॉज का मतलब है जो कि खुद अपने में स्टैंड कर सकता है, हर हस्बैंड विल प्लो द फील्ड, ये किसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया ये वाला। और इफ वाला कौन सा क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज, अर्थात यह निर्भर वाक्य है, ये डिपेंड कर रहा है। अगर हम यहाँ से हटा दिया हमने हर हस्बैंड विल प्लो द फील्ड, सपोज इसको रिमूव करो, तो क्या ये पूर्ण वाक्य है, नो। इफ नीलम मैम बेबी सिट्स, अगर नीलम मैम बच्चे की देख रेख करती है तो क्या होगा, इफ से लगा, इफ क्या है, इफ है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था, यहाँ पे इफ लगता है, मालूम पड़ गया। तो एक हो गया इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज, दूसरा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, तो डेफिनेशन क्या बनी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट हैज 1 प्रिंसिपल क्लॉज एंड 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज, लिख लोगे, राइट। आपने क्या करना है, आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, 4 सेंटेंसेस बनाने हैं, पहले सिंपल सेंटेंस लिखना है, फिर उसका कंपाउंड बनाना, उसमें कॉम्प्लेक्स जोड़ देना है, और एग्जाम्पल